Hello, class 7. Uh, Yesterday the audio was not clear, so today I am giving you the content right from the very first page of this chapter, chapter number 9, obtaining and utilizing food. That is completely all about nutrition. Now we have already defined and explained what nutrition is, what transport is, and what respiration is, and how this should be defined, not confining itself to the green plants. Rather, each and every component, each and every organism that are doing this specific kind of nutrition should be included in it. So we should not use green plants, rather we should use an organism, so that the whole organism, entire area of organism should be included in the definition. It should not be narrow, it should be broader in concept. So we have in the previous class, I mean yesterday, we have discussed autotrophic nutrition, stomata, photosynthesis, chlorophyll, then the equation of photosynthesis, that is carbon dioxide plus water in presence of sunlight and chlorophyll. The glucose was the uh, product, and oxygen that is released into the atmosphere, and the sugar is carried from the leaves to the rest of the plant. So today we will be using and explaining the heterotrophic nutrition. So see, this is the content I am giving you, very much clear. You can stop it and take the notes. This was the second page. Green plants are not the only organism capable of photosynthesis. Algae or certain bacteria are also there to do the photosynthesis. Okay, now here we comes third page, that is heterotrophic nutrition. So today the topic is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is the nutrition which is carried out by organisms that are not autotrophic, means phototrophs. The organism or the process of nutrition in which organisms do not prepare their own food, rather it directly or indirectly depends on autotrophs, is known as heterotrophic nutrition. And the organism that do not prepare their own food and depend on autotrophs directly or indirectly are known as heterotrophs. ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की और हेटरोट्रॉप्स की. अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स: सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. So now we will see what saprophytic nutrition is. You have read about bacteria and fungi while studying the components of habitat in your previous class. Bacteria are unicellular, made up of one cell, that you already know. They are of many types. Autotrophs उसमें से कुछ होते हैं, जबकि बाकी जो हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल में. मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर जो उसमें होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन को लेकर के. सो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बेसिकली इसी बात पे निर्भर करता है. फंजाई टू आर ऑफ मेनी टाइप्स. मशरूम वी ईट. मोल्ड्स दैट ग्रो ऑन ब्रेड एंड रॉटिंग फ्रूट्स. माइल्ड्यू दैट ग्रोज ऑन प्लांट्स एंड डैम्प वुड आर ऑल फंजाई. माइल्ड्यू जो आपने देखा, ये भी एक काइंड ऑफ फंजाई है. सो इज यीस्ट ऑल्सो, which is used to make wine or bread. Like bacteria and most fungi depend on dead and decaying organic matter for their nutrition. So what will be the definition of saprophytic nutrition? The nutrition in which organism
feed on dead and decaying organic matter are called saprophytic nutrition. ठीक है. एंड अब आगे हम क्या करेंगे, सेप्रोट्रॉप्स को या सेप्रोफाइट्स को डिफाइन करेंगे. तो वहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे. जो इस बुक में लिखा हुआ भी है आपके पास, ये देखिए, ये रहा. द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स और सेप्रोट्रॉप्स. ठीक है. द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय secreting digestive juices into it, and then they absorb what they need from the digested matter, and what is left of the broken down organic matter improves soil fertility. यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया हुआ है. कहता है कि जब ऑर्गेनिक मैटर को हम ब्रेक करते हैं तो वो डाइजेस्टिव जूस जो है सिक्रीट करते हैं, देन उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. व्हाट दे नीड फ्रॉम द डाइजेस्टिव मैटर, जो कुछ भी उस मैटर से हमको ज़रूरत होती है, डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है उसके अंदर से, उसको हम सक कर लेते हैं. यानी हम नहीं, मतलब जो सेप्रोफाइट्स है वो सक कर लेते हैं. और जो कुछ बच जाता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को अच्छा कर देता है, इम्प्रूव कर देता है. तो इसके दो फ़ायदे हैं. डेड एंड डिकेइंग मैटर को एक तो सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, उसमें से यूज़फुल मटेरियल को सक कर लेते हैं अपने इसमें बॉडी में न्यूट्रिशन के रूप में, और जो बच जाते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देता है. दिस इज़ वाई सेप्रोफाइट्स आर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू द इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट के लिए तो ये बहुत अच्छा है. एक तरफ वो सॉइल को फर्टाइल कर रहा है, उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है, और दूसरी तरफ सेप्रोफाइट्स क्या कर रहे हैं, उस डेड एंड डिकेइंग मैटर में जो उनके लायक है चीज़ें हैं उनको वो सक करके अपने बॉडी में एज ए न्यूट्रिशन ले रहे हैं. तो इन्वायरमेंट तो क्लीन हो रहा है ना उससे. सो दैट वाज ऑल अबाउट saprophytic nutrition. Now we have parasitic nutrition. Parasites lives inside or another organism and draw nutrition from it. Parasites होते हैं, parasites को आप यूँ मान के चलिए वो एक मेहमान है, गेस्ट हैं. तो जिस बॉडी पर वो रहते हैं वो बॉडी क्या हो गया, गेस्ट, होस्ट. ये हो गया गेस्ट, वो हो गया होस्ट. जिस बॉडी पे ये रहते हैं वो हो गया होस्ट, और ये खुद क्या हो गया, गेस्ट. तो जो गेस्ट है उसको हम कहते हैं पैरासाइट्स. ठीक है. और जो जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर या बॉडी के अंदर इन एंड आउट कहीं भी रह सकते हैं ये. ठीक है. तो इनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे होस्ट, और ये साहब हैं गेस्ट जो कि पैरासाइट्स हैं. नाउ पैरासिटिक न्यूट्रिशन को अगर डिफ़ाइन करना होगा तब हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, है ना. तो इसको डिफ़ाइन करेंगे, द न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म लिव inside or outside the body of an organism and draws nutrition from it is known as parasitic nutrition. And the organism on which a parasite lives is called the host. जैसे कि lice है, ticks है, which live on the body of animals are parasites. So are tapeworms, pinworms, hookworms, है ना, which live in the intestine of animals including humans. Some bacteria and fungi are parasites. So are some types of amoeba. amoeba भी इसी तरह से parasites है बहुत सारे. Many parasites cause disease in plants and animal. ठीक है. तो होस्ट और गेस्ट आपको समझ में आ गया. इसमें होस्ट तो होस्ट है और गेस्ट जो है वही पैरासाइट्स है. ठीक है. सम प्लांट्स टू आर पैरासाइट्स. अब देखिए, अब तक तो हमने एनिमल में देखा था, अब ये प्लांट्स में भी होते हैं. कॉमन पैरासिटिक प्लांट इज़ डॉडर. अमरबेल भी बोलते हैं उसको हिंदी में, अमरबेल. ये डॉडर है. इट्स लॉन्ग येलोइश थ्रेड लाइक स्टेम ट्वाइन अराउंड अदर प्लांट्स एंड ड्रॉ नरिशमेंट फ्रॉम देम. ये थ्रेड लाइक स्टेम होते हैं, येलोइश होते हैं कलर में, लंबे होते हैं, और ये एक दूसरे प्लांट के ऊपर वो रैपअप होते हैं और उससे वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं. क्योंकि वो जो प्लांट पहले से होगा वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, उसके फ्लोएम के थ्रू वो खाना वहाँ से लीफ से चल के रेस्ट ऑफ द बॉडी में पहुँचता है. तो उसी से वो क्या करते हैं, वो सक करते रहते हैं उसमें अटैच होकर के. ठीक है. सम प्लांट्स लाइक माइस्टलीटू आर पार्शियल पैरासाइट्स. ये आधे पैरासाइट, थोड़ा सा न्यूट्रिशन वहाँ से गेन करते हैं, थोड़ा कहीं और से. दे कैन मेक देयर ओन फूड इन
देयर ग्रीन लीव्स बट दे ड्रॉ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अदर प्लांट्स। अब देखिए, ये अपना खाना बनाते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्यों? क्योंकि इनको वाटर और मिनरल की जो ज़रूरत होती है वो ये प्लांट से ही ड्रॉ करते हैं, इनके पास खुद नहीं होता है। और ये चीज़ जब इनको मिल जाता है तो ये ग्रीन लीव्स की मदद से ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है। नाउ holozoic nutrition. Now see what holozoic nutrition is all about. In these types of nutrition, one organism feeds upon another organism. It involves ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. देखिए, सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिफाइन करने की ज़रूरत है। द न्यूट्रिशन इन विच सॉलिड फूड मटेरियल इज टेकन इनटू द ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें सॉलिड फूड को लिया जाए बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे ह्यूमन बीइंग जो न्यूट्रिशन करता है वो होलोजोइक है। हम लोग सॉलिड फूड मटेरियल लेते हैं ना, कुछ भी खाते हैं वो सॉलिड फूड मटेरियल होता है ना, तो वो क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन है। इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 पार्ट होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन, विच इज़ द टेकिंग इन ऑफ द फूड। दूसरा है डाइजेशन, जो कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सोलेबल मॉलिक्यूल्स। इसमें जो फूड हम लोग लेते हैं उसको तोड़ना होता है, तो वो रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं ऑक्सीजन ले करके और उस फूड को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की बारी आती है, तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इंटर्स द ब्लड, ब्लड के अंदर जा कर के वो एब्जॉर्ब होता है। और अब आता है एसिमिलेशन, विच इज़ द प्रोसेस बाय विच द फूड इज़ कैरीड बाय द ब्लड एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। अब सेल में जहाँ जहाँ जिस सेल को जिस काम के लिए एनर्जी चाहिए वहाँ पर जा कर के ये यूटिलाइज होता है, क्योंकि ब्लड के द्वारा तो ये पहुँच गया हर सेल तक और वहाँ पर जा कर के ये यूटिलाइज होगा। दिस इज़ एसिमिलेशन। और जब यूटिलाइज होगा तो आप जानते हैं बॉडी के अंदर कोई भी काम होता है वो एक केमिकल रिएक्शन के रूप में होता है। आप फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं, आपको रिएक्शन बताए थे वहाँ पर कि कैसे वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। तो ये जो केमिकल प्रोसेस होता है ना, केमिकल रिएक्शन में आप पढ़े होइएगा क्लास 7 में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हम बताए थे, याद होगा। फर्स्ट चैप्टर में, क्लास 7 में ही फर्स्ट चैप्टर में आपको बताए थे रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो जब ये रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होने के साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिसको हम कहते हैं वेस्ट। एंड दिस वेस्ट मटेरियल्स जो कि इस न्यूट्रिशन के केस में क्या होंगे? अनडाइजेस्टेड फूड ही होंगे। These undigested food are to be thrown out of the body and the process is known as egestion. So egestion is the process by which undigested food is thrown out of the body. So ये process बहुत important है। यहाँ पर ये पांचों प्रोसेस आप इसको बुक में लिखिएगा, पूरा नोट्स तैयार कीजिएगा। नोट्स तैयार करके और फिर कल आप हमको 7 to 9 मॉर्निंग में, ठीक है, ये आप हमको भेज दीजिएगा। इसको मैं पूरा कर देता हूँ, है ना। डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ फूड होलोजोइक एनिमल्स ईट, दे आर क्लासिफाइड इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। अब ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो लोग करते हैं उनके भी 3 टाइप हैं। क्या क्या है? हर्बीवोर्स, आप जानते हैं, ईट प्लांट्स, केवल प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स, ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, वाइल ओमनीवोर्स ऐसे हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं। ये आप लोग पहले से भी जानते हैं, 6 में पढ़े होइएगा, उससे पहले भी आप पढ़े होइएगा। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स, दे आर नॉट ओनली होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, मेनी अदर टाइप्स ऑफ फीडर्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले ही हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं।
और इसके कई सारे एग्जांपल हैं, फिगर नंबर 9.6 में दिया हुआ है। अब देखिए स्पाइडर हैं, ठीक है, अर्थवॉर्म है, बटरफ्लाइज हैं, तो ये लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं करते हैं, लेकिन हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर्स में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव इन कॉमन इज दैट दे इंजेस्ट फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड देन डाइजेस्ट इट। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है हमारे हिसाब से अमीबा का। See, amoeba, a microscopic organism living in the soil, fresh water, and marine habitats, has a strange way of feeding. The single cell that comprises its body has no particular shape. It sticks out finger-like projection called pseudopodia. Pseudopodia का मतलब होता है false feet. Pseudo मतलब false, podia मतलब पैर यानी feet. तो it means false feet. Singular इसका होता है pseudopodium. It helps in it to move and ingest food. When an amoeba senses the presence of suitable food in its surrounding, it sticks out pseudopodia and engulfs the food. Once the food is inside the cell, the amoeba digests it with the help of enzymes. Enzymes क्या होते हैं? एक तरह के केमिकल्स में हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन में काम आते हैं, इसको बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो इसलिए एंजाइम्स क्या होते हैं? ये स्पेशल केमिकल सब्सटेंस होते हैं प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। एक्चुअल में एंजाइम का काम होता है जो रेट ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं उसके रिएक्शन को बढ़ा देना, रेट को बढ़ा देना, ठीक है। अब जैसे हम लोग एक टाइम में सुबह को जो खाना खाते हैं, अगर हम रिएक्शन वाइज देखें तो इनको 32 साल लगेंगे डिकम्पोज होने के पूरी तरह से। लेकिन अब आप सोचिए कि बायो कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम्स कितना रेट बढ़ा देता है उस रिएक्शन का कि सुबह खाते हैं और दोपहर को कहते हैं मम्मी खाना दो, है ना। सोचिए 32 साल का काम 32 घंटे भी नहीं कह सकते हम, मतलब 2-4 घंटे में हम कह देते हैं कि मुझे भूख लग रही है नहीं बच्चों। तो ये बड़ी बात है। यू कैन इमेजिन द स्पीड दैट द एंजाइम्स इंक्रीजेस टू द रेट ऑफ द रिएक्शंस। तो ये एक बड़ी बात है। इसमें होता क्या है, आप देखिए फिगर को। अमीबा को जैसे ही लगता है कि आसपास के सराउंडिंग में कहीं पे सूटेबल फूड मटेरियल है तो ये अपने स्यूडोपोडिया को एक्टिव करता है, ये उसको सेंस करता है, उसके नज़दीक जाता है, स्टिक करता है उसको और चारों तरफ से घेर के उसको सेल के अंदर इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करने के बाद क्या होता है, इसको डाइजेस्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उसको सेल अपने पास रखता है। फिर इसका भी इजेशन होता होगा, इसका भी जब वो सारा कुछ ये इनसाइड में ले लेता है सारे न्यूट्रिएंट को, तो जो इनके बाई प्रोडक्ट्स बचते हैं इनको फिर उसी तरह से अमीबा क्या करेगा, अपने वॉल तक उसको वापस फेंकेगा और वॉल तक जा कर के फिर सीडोपोडिया क्या करेगा, इसको आउट ऑफ द सेल भेज देगा। तो ये था आज का आपका क्लास और कल हम लोग फिर देखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मंडे को हम फिर मिलेंगे। आप इसके 20 वर्ड्स कर सकते हैं, मैं आज आपको भेज दूंगा इसका सारा क्वेश्चन वगैरह उस क्वेश्चन वाले पेज में भेज दूंगा। 20 वर्ड्स में जहाँ तक हो सके आप करके देखिएगा, हो जाना चाहिए बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके, टिल देन बाय।